Hello everyone, welcome to Elite's Grid. So today we will discuss how to improve your reading comprehension. So how do you improve your RC? So first of all, if I have to improve anything, I should know what exactly that thing is. Then only I can improve it. So for understanding anything better, we need to, question ourselves what exactly that thing is. Why that thing exists or what's the purpose, why things are not going in the right manner. If I have to improve, how can I improve? All certain questions, when I have to improve, all such questions will really help you to understand what exactly is the RC and how you can improve it in case you really need improvement in that. Now let's understand what exactly it is. Now, if you look at it, it should appear very simple. That information is given to you, and on the basis of that, you have to answer. So, answer is actually there in front of you only. They're not really checking your GK or something like that, that you know questions beforehand. कि कोई और knowledge जो पहले से पता है वही check हो रही है. That content is given to you. इसी के basis पे answer देना है. Then what's the issue? Everything is in front of you. Then why are you not able to score in it? So, there must be some issue. Now just imagine this information of RC like, somebody's talking to you. कोई conversation हो रही है with a person. And, you are not able to understand it. तो क्या issues हो सकते हैं? Because when I'm saying कि RC मेरी पूरी information सामने थी and then also I'm not able to answer the questions, तो उसमें broadly 2 issues हो सकते हैं. One can be related to RC कि मुझे RC समझ ही नहीं आ रहा है. I'm not able to get what is being told to me. And the second thing can be that, I am able to understand the RC, but I'm not able to select the right answer despite knowing the information. तो कुछ answers में issue हो रहा है, मतलब उस वाले aspect में हो रहा है. So when I'm saying I'm not able to understand RC, just imagine you are not able to understand what somebody is saying. You have a friend, आपको उसकी बातें समझ नहीं आ रही है कि वो क्या बोल रहा है. ऐसे ही समझो कि RC आपको समझ नहीं आ रहा है. तो उसमें क्या possibilities होती हैं? What can be the causes for you not being able to understand that RC? ना उसमें भी 2 causes, मतलब 2 subtypes हो सकते हैं. एक तो issue with language skills and second issue with interpretation. For example, your friend is talking in a language that is not your mother tongue, तो आपकी उसमें बहुत ज़्यादा proficiency नहीं है. You really not really well at that. तो उसमें definitely if there will be some words that you will not be knowing, so आपको समझ नहीं आएगा. Issue होगा उसकी बातें समझने में अगर वो कुछ ऐसे words use कर रहा है जो आपको नहीं आते हैं. तो you will not be able to understand the exact thing what he is saying. Second thing can be कि even if उस लैंग्वेज में ठीक है कुछ वर्ड्स नहीं आते बट कुछ लैंग्वेज के ईडियम्स फ्रेजेस होते हैं, उनका कुछ स्पेसिफिक मीनिंग होता है, आपको नहीं पता. अगेन बेसिकली व्हेन आई एम सेइंग यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड बिकॉज योर लैंग्वेज स्किल्स आर वीक, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन. आपको उस लैंग्वेज में इशू है कि उस लैंग्वेज के आपको कुछ वर्ड्स नहीं आते या कुछ सेंटेंसेस में दिक्कत है, तो लैंग्वेज स्किल्स. दूसरी दिक्कत हो सकती है, लैंग्वेज तो आती है बट जो आपका स्पेसिफिक फ्रेंड है ना, वो उसको किस वे में बोल रहा है वो समझ नहीं आता. फॉर एग्जाम्पल होता है ना, समटाइम्स योर फ्रेंड सेज दैट हाउ वाज द पेपर. यू आस्क देम हाउ वाज द पेपर, दे विल से इट वाज नॉट रियली गुड, इट वाज ओकेश, मतलब बहुत अच्छा भी नहीं हुआ. बट रियलिटी में जब मार्क्स आते हैं तब बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, 98%, 99%. तो उसमें ऐसा नहीं था कि आपको लैंग्वेज समझ नहीं आई उनकी, कि उन्होंने कहा था कि पेपर अच्छा नहीं हुआ या पेपर बहुत ओकेश ही हुआ है. बट द थिंग इज यू डिडंट इंटरप्रेट व्हाट वाज देयर इंटेंशन. कि वो तो ऐसे ही करते हैं, उसका बोलने का स्टाइल है कि पेपर अच्छा नहीं हुआ, उस मतलब या बहुत नॉर्मल सा पेपर हुआ है, उसके नॉर्मल का मतलब है बहुत अच्छा. तो इंटरप्रिटेशन है वो. या फिर व्हेन यू आर ऑर्डरिंग सम स्नैक्स, सो देयर विल बी सम फ्रेंड कह रहे मुझे भूख नहीं है, आई रियली डोंट वांट टू ऑर्डर एनीथिंग, आई जस्ट टेस्ट वन बाइट फ्रॉम योर फूड. और वो टेस्ट में शील कंप्लीट योर फूड, शील कंप्लीटली फिनिश योर फूड. सो इन दैट केस यू शुड अंडरस्टैंड कि टेस्ट तो आपको समझ में आ गया कि एग्जैक्ट लाइन का मतलब क्या है, पर आप इंटरप्रिटेशन नहीं समझ पाए. तो उसके उस टाइम टेस्ट करना है बस, उसका मतलब एक्चुअली में टेस्ट नहीं था, उसका मतलब था शी विल ईट. तो इंटरप्रिटेशन. तो अब इसको पैसेज में कैसे हम लेंगे? पैसेज में इसका मतलब होता है कि रीडिंग बिटवीन द लाइन्स.
हर चीज आपको नहीं दी, बट आपको ऑथर का एटीट्यूड, आपको ऑथर का इंटेंशन समझना चाहिए। रीडिंग बिटवीन लाइंस, उसका क्या एटीट्यूड है, उसका मतलब इज ही लाइकिंग दिस पर्टिकुलर थिंग, इस चीज के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड है, नेगेटिव एटीट्यूड है, वो हम कैसे जज करेंगे जब हम पढ़ रहे हैं और वो क्या बातें कर रहा है, क्या हमें फैक्ट्स दे रहा है, कैसे या किस टोन में बात कर रहा है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, उससे हमें उसका एटीट्यूड पता चलता है या उसका माइंडसेट पता चलता है उस चीज में। सो टोन, एटीट्यूड, रीडिंग बिटवीन लाइन सब कुछ नहीं दिया, बट फिर भी आप उसके डीपर मीनिंग को या हिडन मीनिंग को आप कुछ अंडरस्टैंड कर पाओ। सो दैट इज इंटरप्रिटेशन। तो अगर आपको जस्ट लाइक यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट योर फ्रेंड इज सेइंग, या तो आपको उसको लैंग्वेज में इशू है, आपको उसकी एग्जैक्ट सारी बातें समझ में नहीं आती है, मे बी कुछ वर्ड्स है जो नहीं आते, तो 100% बात नहीं समझ में आती है, या फिर बातें आपको उसकी मतलब लिटरल आपको वर्ड सब कुछ पता है, लेकिन आपको उसकी स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में स्पेसिफिक इंटरप्रिटेशन नहीं आ रही है। सो ऐसे आरसी में हो सकता है कि या तो आपको देयर विल बी सम वर्ड्स, अगर आपको उसका मीनिंग नहीं आ रहा है तो हो सकता है नहीं समझ में आ रही हो। In CAT level examinations, your main focus is not improving vocab as such. वो vocab के direct questions नहीं देंगे, but definitely having a good vocab will give you an edge. क्योंकि अगर मान लो आपको क्वेश्चन में कोई ऐसा वर्ड है जो समझ में नहीं आया, तो आप क्वेश्चन कैसे समझोगे? या फिर कुछ वर्ड्स हैं तो आप पूरे सेंटेंस का मीनिंग नहीं समझ पाओगे अच्छी तरह, एस्टिमेट कर लोगे, लेकिन स्टिल it can definitely make your understanding little compromised. So it's good to have a good vocab or certain idioms phrases. तो ये वैसे आपको specifically याद करने की जरूरत नहीं है, but definitely if you read more you will get to know many of these. तो ये दिक्कतें हैं, या तो आपको लैंग्वेज नहीं आती या इंटरप्रिटेशन नहीं आती। अगर प्रॉब्लम ये है तो उसका सोल्यूशन भी हमें इसी पर एड्रेस करना पड़ेगा। तो मतलब अगर मुझे आरसी की अंडरस्टैंडिंग वाले इश्यूज, अगर कुछ लोगों को आरसी समझ में नहीं आता, पूरा पढ़ लिया समझ में ही नहीं आया, उसमें एक और रीजन होता है। लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन तो हो गई, देयर कैन बी अनदर रीजन, आई कैन से थर्ड रीजन मोर। यू आर नॉट लाइक जस्ट लाइक योर फ्रेंड इज टॉकिंग और बीच बीच में से आपका ध्यान हट रहा है। सम पीपल आर देयर, वो कुछ बोलते रहेंगे, दूसरा इंसान बोलता रहेगा, दे विल जस्ट बिहेव लाइक दे आर लिसनिंग, बट इन रियलिटी दे आर नॉट लिसनिंग। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। तो बाद में बीच-बीच में आप उसकी बातें मिस कर देते हो, फिर आपको ओवरऑल एंड में समझ ही नहीं आती उसने क्या बोला था। सो द पर्सन विल आस्क यू क्वेश्चन एंड यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या इसका आंसर देना है। तो बीच-बीच में से आपका फोकस हट रहा है। तो ऐसे रीडिंग में भी हो सकता है। वो ऑथर आपको कुछ-कुछ बता रहा है, बट बीच-बीच में आपका डिस्ट्रैक्शन हो रही है। सो यू विल नॉट बी एबल टू गेट द एंटायर थिंग प्रॉपर्ली। बीच-बीच में कुछ लाइन्स मिस हो गई, मे बी वो लाइन्स बहुत इंपॉर्टेंट थी किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो देयर कैन बी दिस थिंग आल्सो। तो अगर ये इश्यूज हैं, तो अब हमें कॉजेस पता चल गए, उसके अकॉर्डिंग ही हम सॉल्यूशन देंगे। So I came to know why the issue is happening. This is the answer for your why. Now I will answer how. How can you address them? So when I talk of issues regarding language, जहां पर आपको अपने फ्रेंड की लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी, या फिर आरसी में आपको वर्ड समझ नहीं आ रहे हैं, यू हैव टू इंप्रूव योर वोकैब और सर्टेन बेसिक इडियम्स और फ्रेजेस दैट आर कॉमनली यूज्ड, सो यू शुड नो देम। सो उसके लिए क्या करना है? जस्ट अंडरस्टैंड दैट हाउ अ चाइल्ड लर्न्स अ लैंग्वेज बिकॉज ही कीप्स लिसनिंग इट। सो यू शुड बी सराउंडेड बाय दैट लैंग्वेज again and again. When I'm say surrounded by that language, it means listen to it, read it, speak it. You listen to maybe English news or English movies, and then, or you read a lot. Reading is definitely most important because ultimately the exam में read ही करना है. Or you start talking also, like you've learned new word, कुछ नया meaning आपको पता चला है, तो उसको अपने दिन में बार बार उस word को use करो, तो फिर यू विल बी एबल टू रिमेम्बर इट इन अ मच बेटर वे। तो जैसे उस लैंग्वेज के ही बार बार यूज करोगे, उसकी मतलब उसको ही सुनोगे, उसको ही पढ़ोगे, तो डेफिनेटली इट विल गेट इम्प्रूव बिकॉज दिस इज हाउ वी एज ह्यूमंस हैव आल्सो लर्नड आवर मदर टंग। सो यू कैन लर्न एनी लैंग्वेज। डोंट यू सी कि बहुत बार ऐसा होता है कि लेट्स से कोई नॉर्थ इंडियन है, साउथ इंडिया में जाके कुछ टाइम के लिए वो रहते, तो धीरे धीरे बिकॉज ऑफ देयर डेली ट्रांजेक्शंस वो अपने आप कुछ वर्ड सीख लेते हैं। उन्हें कोई सिखाता नहीं है, बट बाबा सुन के कि अच्छा 1 2 3 को ये बोलते हैं, कोई बेसिक चीजें तो सब समझ में आ ही जाती हैं। तो दिस इज हाउ यू शुड अगेन एंड अगेन बी इन कॉन्टैक्ट विद द लैंग्वेज दैट यू वांट टू इम्प्रूव, राइट? सो दैट इज इंपॉर्टेंट, बीइंग सराउंडेड। और फिर हो सकता है कि रीड अ लॉट। डेफिनेटली आई वुड take it as a separate point because reading is very 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 important, and reading diverse sources will be even more important. कुछ चीज का भी environment related, कुछ economical, कुछ political, उससे क्या होगा, basic information हर एक फील्ड की थोड़ी थोड़ी you will have, then you will be able to get the context of the passage even better. And then uh, how do you improve the reading? अब read तो करना है, but reading को कैसे improve करते हैं? See, one thing remember, when I have a big task,
तो आपका मोटिवेशन वैसे ही डाउन हो जाता है कि हाउ विल आई बी एबल टू डू इट? अपने आप आपका इंटरेस्ट कम हो जाता है और जब ऐसा होता है तो योर रिजल्ट विल नॉट बी गुड। तो अगर मैं उसको ऐसे बना दूं कि वो बहुत मुश्किल या बड़ा टास्क नहीं है बट इट्स अ स्मॉल टास्क, देन यू विल बी मोटिवेटेड कि हाँ ये तो आसान है, ये तो आसानी से हो जाएगा, आपका इंटरेस्ट अपने आप आने लगता है एंड यू गेट बेटर रिजल्ट। सो हाउ कैन दिस हैपन? जब हमारा फोकस पूरा एक बड़ा सा आरसी होता है ना, हमें पूरे पे फोकस एक बार में करते हो तो हमें लगता है हमें इस पूरे को जल्दी से खत्म करना है, जल्दी से रीड करते हैं। एक बहुत बोरिंग सा टास्क हो जाता है, जैसे हमें तो बहुत बड़ी मेहनत करनी है इसको पढ़ के, बहुत अपने एफर्ट्स लगाने हैं। लेकिन पैरा समरी जब होती है तो उसमें एक छोटा सा पैराग्राफ, इट डजंट फील टू मच ऑफ अ बिग टास्क। तो क्या होता है, एक पैसेज को आप ऐसे मत देखो कि वो एक बड़ा सा टास्क है, उसको ऐसे देखो कि वो छोटे छोटे पैराग्राफ हैं। मुझे बस ये पैराग्राफ पढ़ना है, मुझे बस अभी ये पैरा ही समझना है, बाकी पे मत फोकस करो। सिर्फ अभी अपने दिमाग से हटा दो कि मुझे भी बहुत, मतलब ऐसे टेंशन में मत रहो, पूरा पूरा आरसी करना है, पता नहीं कैसे होगा ये वो, और पूरे पे आप पूरा ही सोचते रहते हो, इसलिए जो अभी लाइन चल रही होती है उसमें फोकस नहीं करते। सिर्फ एक बार में सोचो मुझे बस ये पैराग्राफ समझना है अभी। तो अभी फटाफट पढ़ो और अपने दिमाग में थोड़ा सा कुछ कीवर्ड्स, दिस पैरा इज टॉकिंग अबाउट दिस। सो देर आर सम पीपल जो एक्चुअली पेज पे मैप बना के करते हैं, बट यू कैन डू इट मेंटली ऑल्सो। और माइंड की स्पीड आपके हैंड की स्पीड से बहुत ज्यादा होती है। सो इफ यू कैन ट्रेन योर माइंड राइट नाउ, इट विल गिव यू मच बेटर रिजल्ट्स। तो फटाफट पैराग्राफ पर अपने माइंड में सोचा, अच्छा ये वाला पैराग्राफ इसके लिए, फिर सेकंड पैराग्राफ, 3-4 पैराग्राफ हो गया, 4-5 होंगे, तो जल्दी से दिस वाज आउट दिस, बस एक बारी में एक पैराग्राफ ऐसे सोचना है, मेरा टास्क सिर्फ ये पैरा पढ़ना ही है, पूरा पूरा पैसेज पढ़ना नहीं है। तो आपको ना लगेगा छोटा छोटा ही काम है। जैसे इफ आई हैव टू आस्क यू टू राइट अ बुक, तो आप घबरा जाओगे, मैं कैसे एक पूरी बुक लिख सकता हूँ? मैं बस आपको कहूँ एक पेज लिखो, ठीक है, जस्ट राइट वन पेज, यू विल से यस आई कैन राइट वन पेज। जब वो वन पेज कंप्लीट हो जाए, मैं आपको कह दूं एक पेज और लिख दो बस इसके आगे का, कुछ भी अपने आप कंटिन्यू करके, तो यू विल राइट इट। ऐसे फिर एक और पेज, देन मे बी एक एक पेज करके आप पूरी बुक लिख दो, लेकिन आपको फील नहीं होएगा। लेकिन अगर एकदम से आप बोल दो एक बुक लिखनी है, तो आप खुद ही नर्वस हो जाओगे, खुद ही मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, फिर आप कर ही नहीं पाओगे उसको अच्छी तरह। सो दिस इज हाउ ब्रेकिंग अ बिग टास्क इनटू स्मॉल इजी टास्क विल गिव यू बेटर रिजल्ट्स। ना अनदर थिंग जिससे आप अपना फोकस ज्यादा अच्छे से मेंटेन कर सकते हो वाइल रीडिंग विल बी स्पीकिंग। जब पढ़ रहे हो तो यू शुड स्पीक, उससे आप एंगेज रहते हो, यू विल बी इन्वॉल्व इन एक्टिव एक्टिव रीडिंग। अदरवाइज देखो, जैसे हम किसी की बात सुन रहे हैं, अगेन टेक दैट एग्जांपल, हम अपने फ्रेंड की बात सुन रहे हैं, हम सिर्फ सुनते रहे, इट विल बिकम पैसिव और शायद हमारा ध्यान हटने लगे। बट यू आर एक्टिवली एंगेज इन इट, कुछ क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, कुछ बात आप कर रहे हो, देन मे बी दैट कॉन्वर्सेशन कैन गो ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट गेटिंग बोर्ड। तो स्पीक, यू शुड बी एंगेज, या तो स्पीक करो या फिर वट एवर इज गिवन टू यू, कोई भी इंफॉर्मेशन उसको इमेजिन करते रहो। जैसे अगर वर्ड्स आ रहे हैं, एप्पल, ये सब चीजें, या अच्छा दिस प्लेस दिस हैपेंड, दिस पर्सन स्लैप दिस पर्सन, जैसे रीड कर रहे हो, कीप इमेजिनिंग, योर ब्रेन विल बी एंगेज्ड इन दैट। जब तक ब्रेन एक्टिव रहेगा तब तक आपका फोकस बना रहेगा, यू विल बी एबल टू रिटेन। जैसे ही बहुत पैसिव हो जाओगे, फोकस जाने लगेगा एंड यू विल लाइक मैं क्या पढ़ रहा था, पढ़ते रहोगे, एकदम से रियलाइज होगा अरे मैंने क्या पढ़ा था अभी। तो ऐसी सिचुएशन नहीं आने देना। इसलिए पैरा बाय पैरा से क्या होगा कि एक पैरा को याद कर लोगे, फोकस बना रहेगा। ये नहीं रहेगा पहले पूरा पढ़ लूं फिर समझू इसमें क्या था। एक पैरा करा, उसका अच्छी तरह फोकस, दूसरा पैरा, ऐसे पैरा वाइज पैरा करके बेटर हो जाएगा। सो यू कैन स्पीक ऑल्सो। आप कहोगे एग्जाम में कैसे हम बोल सकते हैं, धीरे धीरे, मतलब शुरू में तेज बोलो, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, देन यू कैन डिक्रीज द साउंड एंड यू मे थिंक, मे बी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम यू मे थिंक यू आर स्पीकिंग, इफेक्ट वही होगा, लेकिन अपने मन मन में बोलोगे तो भी यू विल बी क्वाइट एक्टिव इन रीडिंग इट। So this is how you can you can actually improve your focus while reading. Another thing जिस चीज में हमारा इंटरेस्ट होता है वो चीज हम अपने आप बहुत अच्छे से करते हैं, जिसमें इंटरेस्ट नहीं होता उसमें आपको बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे फोकस के लिए। तो किसी तरीके से तो आपको अपना इंटरेस्ट उसमें जनरेट करना ही पड़ेगा। सो इट विल बी बाय स्पीकिंग एज इफ यू हैव टू टीच, सो आई एम स्टडिंग सो दैट आई हैव टू टीच, और मे बी यू आर इमेजिनिंग जस्ट लाइक अ चाइल्ड, जैसे मैम क्लास में पढ़ा रही होती है। या फिर एक और चीज हो सकती है, जस्ट लाइक व्हेन यू गो फॉर फिजिकल एक्सरसाइज इन जिम और एनीवेयर, तो अपने आप को बड़े टारगेट्स रखते हो, तभी तो एक्सरसाइज होगी। जो जो बहुत इजी एक्सरसाइज है उससे तो बॉडी में कोई हेल्प ही नहीं मिलेगी। तो जिससे आपको फील होता है कि यस देयर इज सम पेन, उससे आपको सेटिस्फेक्शन होती है, हाँ इससे कुछ हो रहा होगा, ये एक्सरसाइज इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प मी। जिससे कुछ पता ही नहीं चल रहा, उससे हेल्प नहीं मिलेगी, पर धीरे धीरे क्या होता है कि शुरू शुरू में दैट एक्सरसाइज विल गिव यू पेन, बट स्लोली स्लोली इट विल बी ऑल राइट, यू विल गेट यूज टू इट। ऐसे ही कई बार होएगा कि कुछ आरसीज होंगे जो बहुत बोरिंग लग रहे हैं, इंटरेस्ट आ ही नहीं रहा है उसमें, तो देन यू हैव टू यूज योर विल पावर
उसको छोड़ना नहीं है वहाँ पे, इनफैक्ट ज़्यादा आरसीज़ वो करो जिसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा। अपने आप को ऐसे माइंड को ट्रेन कर लो कि even if there is temptation that I have to leave, no, you have to go, you have to read this, you can't leave it like this. So you have to keep going. बार-बार ध्यान हट रहा है तो भी पढ़ना है। तो जस्ट लाइक एक्सरसाइज शुरू-शुरू में लगेगा, धीरे-धीरे आप देखोगे कि आपके माइंड को हैबिट पड़ जाएगी कि even if things are not interesting, you can still read them with full interest. So ये स्किल आ जाएगा। So this was all about how you can resolve this issue of understanding RC. अब सेकंड इश्यू था जिसकी वजह से नहीं स्कोर होता कि आरसी तो अच्छी तरह सब समझ में आ रहा है आपको, बट क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं आ पा रहे हैं, आंसर्स नहीं आ पा रहे हैं। तो वो कैसे हो सकता है? या तो आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया कि क्वेश्चन क्या है, या क्वेश्चन भी समझ में आ गया है, लेकिन चॉइस ऑप्शंस की ऐसे कि आप नहीं पिक कर पा रहे हो विच इज द राइट वन। बहुत बार ऐसा होता है लास्ट में 2 ऑप्शन तक पहुंच जाते हो कि पक्का इनमें से कोई 2 है, फिर गलत पिक कर लेते हैं। तो चॉइस में या तो इश्यू हो रहा है, या तो क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, या चॉइस में इश्यू हो रहा है। क्वेश्चन समझ क्यों नहीं आ रहा है? या तो डेफिनेटली लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, आपको समझ ही नहीं आया, कुछ उसमें वर्ड ऐसा यूज आपको समझ नहीं आया वो क्या पूछ रहा है, या फिर आप इंटेंशन नहीं समझ पा रहे हो, तो देयर कैन बी इशू विद दैट ऑल्सो, आप इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हो। चॉइस क्यों नहीं पिक हो पाई? क्योंकि उसमें बहुत बार ऐसा होता है, यस आरसी की अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं थी, या फिर ऑप्शंस ही ऐसे थे कि बहुत मुश्किल हो गया सेलेक्ट करना। तो उसमें कैसे हम कर सकते हैं? हाउ कैन यू रियली सेलेक्ट विच इज द बेस्ट ऑप्शन? उससे इजी होता है एलिमिनेट करना। अच्छा ये नहीं हो सकता, चलो इसको एलिमिनेट करें, एंड में करते करते एक बच जाता है। तो एलिमिनेट किसको करना है? ना इसमें क्या हमें हेल्प मिलती है? जैसे मैंने कहा था कि हमारी फ्रेंड है, वो कहती है मेरा नॉर्मल पेपर हुआ पर मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, या फिर कहेगी बस मुझे टेस्ट करना है, वो पूरा खाना खा जाती है। तो अब वो मुझे कैसे पता चला? बिकॉज़ ऑफ माय रिपीटेड एक्सपीरियंस विद हर। बार-बार मुझे मिलने से पता ये तो हमेशा ऐसे करती है, इसलिए ऐसे है। ऐसे ही जस्ट टेक दैट फ्रेंड एज़ योर कैट एग्ज़ाम। तो बार-बार जब आप उसके प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तब आपको समझ में आ जाएगा इनका इस चीज़ का मतलब ना ये होता है, ये इस तरीके के लोग हैं, ये इस तरीके के माइंडसेट से ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। तो क्योंकि इंग्लिश तो सबकी सेम है, इस केस में भी सेम ही थी, उस फ्रेंड के केस में आपको समझ में आ रहा था व्हाट इट मीन्स व्हेन शी सेज हर पेपर वाज़ जस्ट नॉर्मल नॉट सो गुड, और व्हाट शी मेंट व्हेन शी सेड दैट शी जस्ट वांट टू टेस्ट, but still something was not exactly same. And how you come to know about this? Because you know your friend, because of experience, बाबा मिलने से। ऐसे बाबा प्रैक्टिस करने से कैट के प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको पता चल जाएगा उन लोगों का क्या माइंडसेट होता है जिससे वो ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। कि आपको लग रहा था 2 ऑप्शंस में से कोई एक हो सकता है, सो दे हैव पिक्ड ऑप्शन बी। व्हाट वाज द रीजनिंग बिहाइंड दिस? ऐसे कोई और क्वेश्चन है जिसमें सी और डी हो सकता था, तो व्हाई इट वाज डी? वो जब आप करोगे तो आप एक पैटर्न देखोगे कि अच्छा वो कुछ चीजों को प्रेफर करते हैं, कुछ चीजों को नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, एक्सट्रीम ऑप्शंस आर नॉट रियली प्रेफरेबल। आई एम नॉट सेइंग दैट दे कैन नेवर बी द आंसर, बट इन मेनी केसेस दे विल नॉट बी आंसर। लाइक all the things are included in this. It is the worst thing. It is the everyone should be like ये words जिसमें सब included होता है, या तो 0% या 100%। ये क्यों इनकरेक्ट होता है? क्योंकि आरसी आपकी स्पेशली जो सोशल साइंसेज वाले होते हैं उसमें इट इज अबाउट योर लाइफ, और लाइफ में कभी 0 या 100% होता ही नहीं है। इट्स ऑलवेज अ मिक्स। कोई भी पॉसिबिलिटी ऐसे नहीं होती कि बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल एब्सोल्यूट नहीं होती है। तो बहुत बार एक्सट्रीम वाली चीजें आप एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शंस। सेकेंडली इज टोन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कि ठीक है, ऑप्शन में क्या था? ऑप्शंस में कुछ इश्यूज बताए गए थे किसी चीज के कि डेमोक्रेसी हैज दिस इश्यूज। अगर किसी ऑप्शन में ऐसा लिखा है मतलब डेमोक्रेसी के क्या इश्यूज है, ऑप्शंस कह रहे इट इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, शुड बी इरेडिकेटेड, खत्म करो, अभी कहीं नहीं होनी चाहिए। ये टोन नहीं थी। टोन वाज वेरी ऑब्जेक्टिव कि पॉजिटिव्स ये है, नेगेटिव्स ये है। कोई ऐसा नहीं लग रहा था कि वो बस उसकी बुराई करे जा रहे हैं। लेकिन जब कुछ ऑप्शंस हैं विच आर सेइंग बहुत ही ज्यादा उसके बारे में नेगेटिव में आ गए, बहुत ही क्रिटिकल टोन है, तो आप देख सकते हो ऑथर ने इस वे में बात नहीं की थी। कई बार ऐसा होता है ना, फ्रेंड के साथ लड़ाई हो जाए, जनरल सी बात की थी, लेकिन दे टेक इट लाइक वेरी क्रिटिकल वे। तो ऐसा नहीं होता, उसको ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हो क्योंकि टोन मैच नहीं हो रही है पैसेज के साथ। सो अनदर थिंग एक्सट्रीम, या फिर क्या होता है कुछ वर्ड सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब पैसेज में कोई वर्ड यूज था, ठीक है, और ऑप्शन में उस वर्ड की जगह कुछ और उन लोगों ने वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज कर लिए, तो आप सोचो अरे ये तो मेंशन ही नहीं था, चलो इसे एलिमिनेट करते हैं। बट दैट्स नॉट द केस। बात तो सेम है। जैसे आई रिमेंबर देयर वाज वन आरसी जिसमें एक ऑप्शन में, मतलब आरसी में कुछ था कि रेसिज्म के अगेंस्ट है, तो कुछ ऑप्शन, एक ऑप्शन में उसमें ये था
कि पॉलिटिकली अनएक्सेप्टेबल थिंग्स ऐसे करके उसके लिए कुछ रेफरेंस दी गई थी। देन सम पीपल वर कंफ्यूज कि ये तो हमने बात ही नहीं की थी कि पॉलिटिकली अनएक्सेप्टेबल या नॉट अगेंस्ट द लॉ समथिंग कुछ ऐसी बातें कही गई थी, तो इट वाज एक्चुअली रेफरिंग टू इट। तो अगर कुछ वर्ड की जगह दूसरा वर्ड सब्स्टिट्यूट कर दे या ग्रुप ऑफ वर्ड सब्स्टिट्यूट कर दे, देन सी व्हाट इफ इट रेफरिंग टू सेम थिंग, देन यू कांट एलिमिनेट इट। कई बार ऐसा होता है जस्ट टू ट्रैप यू, सो दे विल यूज अनदर वर्ड। सो अगेन वो कैप का थोड़ा रोल इधर भी आ जाता है। सो दिस इज अगेन हाउ यू कैन सी कि कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट करना है या नहीं। एंड with practice best thing is you will be able to understand previous years के जब पेपर देखोगे कि what mindset you have to see, कैसे ऑप्शंस एलिमिनेट। देखो जो रिलेटेड ही नहीं है बिल्कुल भी, हम उसे बिल्कुल एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो दी हुई है उसी के बेसिस पे यू हैव टू आंसर। सो यू हैव टू एलिमिनेट थिंग्स व्हिच आर नॉट रिलेटेड। देन थिंग्स there will be certain things which will not be correct, जो करेक्ट ही नहीं है पैसेज के अकॉर्डिंग। तो फिर कुछ ऑप्शंस बचेंगे जो करेक्ट है, उसमें से हमें देखना पड़ेगा टोन किसकी बेटर है, एक्सट्रीम तो नहीं है, एंड देन वी विल सेलेक्ट द आंसर। सो दिस वाज हाउ, जिनको क्वेश्चंस में दिक्कत होती है, आंसर समझ में आता है बट क्वेश्चंस में दिक्कत होती है, देन दिस इज हाउ वी कैन एड्रेस इट। नाउ अनदर क्वेश्चन अ स्टूडेंट इज कि हाउ डू आई कम टू नो व्हाट टू स्टडी इन आरसी एंड व्हाट टू स्किप, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, कई बार सब कुछ नहीं चाहिए होता। तो उसके लिए, या फिर अनदर वे टू पुट दिस क्वेश्चन इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट और व्हाट इज नॉट। जब मैं पढ़ रही हूँ आरसी, तो रिमेंबर जस्ट लाइक इन लाइफ, हम देखते हैं ना कौन से लोग इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं, बेस्ड ऑन हाउ यूजफुल दे आर। सेम डिपेंड्स ऑन आरसी ऑल्सो। वो इन्फॉर्मेशन यूजफुल है या नहीं, इसके बेसिस पे डिपेंड करेगा कि दैट्स इंपॉर्टेंट और नॉट। एंड हाउ डू आई डिसाइड इट्स यूजफुल और नॉट? फॉर दैट आई हैव टू सी कि क्वेश्चन उस पे बेस्ड है, क्वेश्चन में उसकी जरूरत है या नहीं। इफ इट इज नॉट रिक्वायर्ड इन एनी क्वेश्चन, ऑफ कोर्स इट इज नॉट दैट यूजफुल। सो सीइंग क्वेश्चंस बिफोर आरसी कैन डेफिनेटली बी हेल्पफुल, क्योंकि वो एक आपको टारगेट सेट कर देगा। अब उसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे जो ओवरऑल आपको उसके अंडरस्टैंडिंग के होंगे, या इन्फ्रेंस वाले जो होते हैं ओवरऑल इन्फ्रेंस, जनरल मीनिंग, तो या फिर होंगे स्पेसिफिक। ओवरऑल के लिए तो यू कांट रियली सी द क्वेश्चन बिफोर गोइंग थ्रू द एंटायर पैसेज, कोई हेल्प नहीं होगी, क्योंकि बड़े बड़े 4 सेंटेंसेस होंगे, आप याद रख भी नहीं सकते इतना, फिर दोबारा के फिर से पढ़ोगे तो डबल टाइम लगेगा। बट जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि किसी की टर्म के, किसी की वर्ड के, या कुछ ऐसे स्पेसिफिक के क्या क्या फंक्शंस हैं, इसके क्या क्या इश्यूज हैं, तो जब ये पैसेज में आएंगे तो मैं इनको ज्यादा ध्यान से पढ़ सकती हूँ। सो दिस कैन रियली बी ऑफ यूज टू मी। और अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही है जो ना जनरल से रिलेटेड है, ना वो स्पेसिफिक क्वेश्चन, मैं क्वेश्चंस देख चुकी हूँ, उसके बाद मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर थिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, तो थोड़ा जल्दी जल्दी उसे पढ़ सकते हैं। डोंट स्किप इट, जस्ट रीड इट फास्टर। फॉर एग्जाम्पल देयर वाज अ आरसी जिसमें क्या था, कॉलोनाइजेशन पे, तो पूरा पूरा पैसेज कॉलोनाइजेशन पे था कि व्हाट वर द कॉजेज, व्हाट वर द इफेक्ट्स, ऑल सच थिंग्स। तो बीच में एक लाइन, और मैंने सारे क्वेश्चंस भी देख लिए कि सब जनरली हैं, तो एक लाइन है कि 9-10 कंट्रीज के नेम्स हैं, कि इन कंट्रीज ने, बाकी फिर 9-10 कंट्रीज के नेम है, इन कंट्रीज को कॉलोनाइज किया, ये इनकी कॉलोनी थी। तो फिर मैंने देखा किसी भी क्वेश्चन में वो रिक्वायर्ड नहीं है, तो मैं जरूरी नहीं सारे 9-10 एक बार ध्यान से सारे क्वेश्चन कंट्रीज पढ़ूंगी, क्योंकि वो ऐसा क्वेश्चन तो है नहीं कि वो एक कंट्री का नाम पूछ लेंगे ये उसमें था या नहीं। तो फिर जल्दी 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 उन कंट्रीज के नेम पढ़ सकते हैं दोनों केस में, तो थोड़ा टाइम बच जाएगा। तो ऐसे यू कैन डिसाइड। So this was how you can see what is important, what is not. Now I think we have answered our question of how you can improve your RC, understanding wala bhi और questions wala bhi. Now we have answered like what, why, how. So another thing, as I told you, किसी भी चीज को समझना है तो उसका what, why, how ये सब समझने की कोशिश करो, you will understand the topic better. तो अब where करते हैं, क्योंकि एग्जाम में कंप्यूटर स्क्रीन पे ही पैसेज होता है, तो इट रियली गिव्स यू अ बेनिफिट। हार्ड कॉपी पे क्या होगा कि इट विल बी कंफर्टेबल राइट नाउ, बट एग्जाम में तो आपको स्क्रीन पे ही पढ़ना है ना, और रीडिंग स्पीड डिफर करती है दोनों में। तो अपने माइंड को ऐसे ट्रेन करो कि वो स्क्रीन पे जल्दी रीड कर सके। सो इट इज बेटर टू ट्रेन योर माइंड डायरेक्टली बाय रीडिंग ऑन द स्क्रीन। सो दिस कैन बी हेल्पफुल। So I think we can wind up here, and like what all things we have discussed, that you can have issues with RC, या तो आरसी समझ में नहीं आ रहा, या आरसी आ रहा है क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो आरसी को हमने कॉन्वर्जेशन के साथ रखा, एक फ्रेंड की कॉन्वर्जेशन के साथ। या तो आपको उसकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही क्योंकि वो कुछ ऐसे वर्ड्स यूज कर रही है, या फिर वो वर्ड्स तो आपको समझ में आ रहे हैं, उसका हिडन मीनिंग, हिडन मीनिंग, उसका एटीट्यूड वो समझ में नहीं आ रहा है। जैसे व्हेन शी इज सेइंग हर पेपर इज नॉर्मल, बट असली में मार्क्स बहुत ज्यादा आते हैं, तो आप समझते हैं इसके लिए नॉर्मल का मतलब है वेरी नाइस। तो वो
हिडन मीनिंग होते हैं जो हमें ऑथर का एटीट्यूड और टोन बताते हैं, या रीडिंग बिटवीन द लाइंस। फिर लैंग्वेज के लिए आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो? जस्ट लाइक अ चाइल्ड अंडरस्टैंड्स एनी, यू लर्न्स एनी लैंग्वेज, से सुनो, रीड करो, टॉक इन दैट, यू विल बी एबल टू हैव बेटर कमांड ओवर इट। फिर रीडिंग कैसे करनी है? पूरे पैसेज को ना सोच के ऐसे सोचो, छोटे छोटे, बस एक बार में एक पैरा का सोचो, तो एकदम से आपको लगेगा इजी टास्क है, आप जल्दी से उसे कर दोगे। फिर हाउ यू कैन इंप्रूव द फोकस? बाय कीपिंग योरसेल्फ एंगेज्ड इन द passage, and even sometimes you have to increase your willpower by reading those passages that are not of same interest as yours. So if you have problems with RCs के answers, questions में दिक्कत होती है, तो choice से, या तो question समझ नहीं आ रहा है या choice से दिक्कत है। तो choice में दिक्कत है तो हमने पढ़ा कुछ choices जो अच्छी, मतलब प्रेफरेबल नहीं होती, हम उसे एलिमिनेट कर देते हैं। फिर हमें बाद में जो मिलता है उसके बाद हम देखते हैं कि वो रिलेटेड भी है, वो फैक्चुअली करेक्ट भी है। फिर हम देखते हैं टोन मैच हो रही है या नहीं, और पूरा अच्छी तरह आंसर उस क्वेश्चन को कर रहा है नहीं, टू द पॉइंट है या नहीं। सो इट्स हिटिंग द बुलआइज और जस्ट बीटिंग अराउंड द बुश, ये सब चीजें देखनी है। फिर रीडिंग के टाइम क्या ध्यान रखना है, कैसे मैं डिसाइड करूँ कौन सी इन्फॉर्मेशन यूजफुल है या नहीं, और कैसे रीड करना है स्क्रीन पे इज गोइंग टू बी अ मच बेटर वे। सो ऑल दिस वी डिस्कस टुडे। So I hope this session would have been quite useful to you, and we'll be back with another session soon. Thank you.